Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। एक जरूरी सूचना अनाउंसमेंट है। Someone is getting married. कोई विवाह। 2 Kings. 2 राजा की पुस्तक खोलेंगे, आज के वचन में जाएंगे। Two Kings. 2 राजा की पुस्तक। Before that, I want to say something. उससे पहले कुछ कहना है मुझे। Pooja is done a good preaching. See you in Bible study. Right? Today, how many would like to have double portion? दुगना आशीष किन लोगों को चाहिए? Think now before putting your hand up. सोचकर अपना हाथ ऊपर करना। I will throw the googly. दुगना आशीष किसको चाहिए? Now don't putting the hand down slowly. Yeah, like पहले ऊपर किया फिर अभी नीचे किया। double portion sure. सोचकर अपना हाथ ऊपर करना अगर दुगना आशीष चाहिए। Double portion. Prakash is the दुगना आशीष किनको चाहिए? दुगना आशीष Vincent, yes or no? Brother Paul? Huh? Come here, you want to sit here. No problem. Okay. We are ready? तैयार हो जाएंगे? Something exciting is going to come. Tell your neighbor, I need double portion. एक दूसरे को कहेंगे हमें दुगना चाहिए, हमें दुगना चाहिए। Now you tell your neighbor, what is the double portion? अभी पूछो कि दुगना क्या है? दुगना आशीष का मतलब क्या? Coming. दुगना। I will read in English and then you read in Hindi. Okay? I'll read in English the whole thing. 2 Kings 2, 2 राजा दूसरा अध्याय से जो है 1 to 14. पहले से 14 वचन पूरा हम जो पढ़ने वाले हैं। If you are in English, follow me. And it came to pass when the Lord was about to take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal. Then Elijah said to Elisha, "Stay here, please, for the Lord has sent me to Bethel." But Elisha said, "As the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you." So they went down to Bethel. Now the sons of the prophets who were at Bethel came out to Elisha and said to him, "Do you know that the Lord will take away your master from over you today?" And he said, "Yes, I know. Keep silent." Okay. Then verse 4. Then Elijah said to him, "Elisha, stay here, please, for the Lord has sent me on to Jericho." But he said, "As the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you." So they came to Jericho. Verse 5. Now the sons of the prophets who were at Jericho came to Elisha and said to him, "Do you know that the Lord will take away your master from over you today?" So he answered, "Yes, I know. Keep silent." Verse 6. Then Elijah said to him, "Stay here, please, for the Lord has sent me on to Jordan." But he said, "As the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you." So the 2 of them went on. Verse 7. And 50 men of the sons of the prophet went and stood facing them at a distance, while the 2 of them stood by Jordan. Now Elijah took his mantle, rolled it up, and struck the water, and it was divided this way and that, so that the 2 of them crossed over on dry ground. And so it was, when they had crossed over, that Elijah said to Elisha, "Ask, what may I do for you before I am taken away from you?" Elisha said,
please let a double portion of your spirit be upon me. Verse 10. So he said, you have asked a hard thing. Nevertheless, if you see me when I am taken from you, it shall be so for you. But if not, it shall not be so. Verse 11. Then it happened as they continued on and talked, then suddenly a chariot of fire appeared with horses of fire and separated the two of them. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. 12. And Elisha saw it, and he cried out, my father, the chariot of Israel and its horsemen. So he saw him no more, and he took hold of his own clothes and tore them into two pieces. 13. He also took up the mantle of Elijah that had fallen from him and went back and stood by the bank of the Jordan. 14. Then he took the mantle of Elijah that had fallen from him and struck the water and said, where is the Lord God of Elijah? And when he had struck the water, it was divided this way and that, and Elisha crossed over. Come and say. जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलिशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहर। एलिशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ दूंगा। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। इसलिए एलिया ने उससे कहा, ए एलिशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहर। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ देगा। अतः वे यरीहो को आए। और यरीहो वासी भविष्यवक्ता के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उनसे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अतः वे दोनों आगे चले। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गया, और वे दोनों स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुँचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊँ, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूँ, वह मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका धुना भाग मुझे मिल जाए। फिर एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लेने के जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह इसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा,
एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने चल कर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। आमीन। Amen. So we all want the double portion. तो इसी प्रकार से हम सबको भी दुगना आशीष चाहिए। But if you see verse 13, लेकिन 13वें वचन में अगर हम जाएंगे, okay, if you see verse 10, 10वां वचन, it says that you have asked a very hard thing. एलाइजा ने एलीशा से कहा कि तुमने बहुत ही मुश्किल बात जो मांगी है, You're asking something very difficult. एक कठिन बात तुमने जो मांगा है। You know, when you ask something very difficult, it's very difficult to give. अगर कोई कठिन चीज जो मांगता है तो देने के लिए भी कठिन होता है। You know that Elijah was a great prophet, एलाइजा जो है जो बड़ा नबी था, हम जानते हैं। and Elisha did double the miracles, exactly double. और That's what अगर Elijah. हम जो बाइबल में देखेंगे तो एलीशा ने जो दुगने चमत्कार किए जितने एलाइजा ने किए। That means Elisha should be bigger, popular than Elijah. इसका मतलब है कि एलीशा ने जो दुगने जो चमत्कार किए, इसकी वजह से एलीशा का नाम और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था एलाइजा से। But if you see, John the Baptist came in the spirit of Elijah. लेकिन नए नियम में लिखा गया है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो एलाइजा की आत्मा से आया है। There were times when Jesus says, "Whom do you say I am?" And some said Elijah. यीशु ने एक बार शिष्यों से पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में? क्या मैं एलिया हूँ क्या? The power of Elijah was a ministry. एलाइजा का जो सेवकाई जो उसकी थी, It was not only having authority and sitting, it was doing the ministry of what the Lord commanded. एलाइजा के ऊपर जो अभिषेक था वो सिर्फ जो है सिर्फ जो बात करने का नहीं, लेकिन चमत्कार करने का भी था। Now Elisha asked for a double. एलीशा ने जब एलाइजा का जीवन को देखा तो एलीशा ने एलाइजा से दुगना जो है आशीष को मांगा। So where is the single? तो अगर एलीशा ने दुगना आशीष जो मांगा है तो जो पहला आशीष कहाँ से मिला? We look into 1 Kings 19, ये देखने के लिए हम एक राजा की पुस्तक में जाएंगे, verse 16. The Bible says that Elijah will anoint Jehu as king of Israel. एलाइजा को जेहू को जो है अभिषेक करना था राजा के तौर पर। And Elisha you shall appoint or anoint as prophet in your place. और एलाइजा को कहा गया था कि तुम्हें एलीशा को अभिषेक करना है तुम्हारी जगह पर। Say Dinesh has a job, सोचो दिनेश की एक नौकरी है, getting a lot of money, बहुत पैसा मिल रहा है a lot of perks, and he's told someone is coming in your place. और अगर उसको कहा गया कि तुम्हारी जगह पर कोई और आ रहा है अभी, When someone is coming in your place, you will not like it. तो अगर कोई आकर तुम्हारी जगह ले, हमको वो पसंद नहीं आएगा। But here Jehovah has decided. लेकिन यहाँ यहोवा परमेश्वर ने निर्णय किया है। And this was the ministry Elijah had under instruction from Jehovah. और एलाइजा की जो सेवकाई थी वो परमेश्वर के प्रति सेवा की भावना जो है। So before God takes Elijah, he's saying anoint king of Israel. तो जो है एलाइजा को स्वर्ग लेने से पहले परमेश्वर ने एलाइजा को निर्देशन दिया कि तुम्हें जो है जेहू को इज़राइल का राजा जो बनाना है। Then he says anoint a man known as Elisha. और फिर एक जो व्यक्ति जिसका नाम एलीशा है उसको जो नबी के तौर पर तुम्हें अभिषेक करना है तुम्हारी जगह पे। Verse 19. And he departed from there and found Elisha the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen before him, and he was with the 12, that means he was finishing his work. Then Elijah passed
passed by him and threw his mantle on him. जब एलाइजा एलीशा को ढूंढते हुए गया तो उसने देखा कि एलाइजा खेती को कर रहा था और अपने खेती के आखिरी जो काम में लगा था, तो एलाइजा ने उसके बाद उसके पास जाकर अपना जो वस्त्र उसके ऊपर डाल दिया। That means Elisha received the first portion when he was anointed. तो पहला जो अभिषेक एलीशा को मिला था जब एलाइजा ने एलीशा के ऊपर अपना जो वस्त्र डालकर उसको अपनी जगह अभिषेक किया। Now ask your neighbor, where is my first portion? अब एक दूसरे को पूछेंगे कि मेरा जो पहला आशीष का भाग हमारा पहला पोर्शन किधर है? दूसरा मांग रहा है। पहला जो आशीष हमने पाया, You have received your first portion and salvation. जब आपका उद्धार हुआ था आपको आपका आशीष का पहला हिस्सा मिला था। Where you have received your first portion? कहाँ पर जो पहला आशीष का भाग मिला? जिस दिन आपका उद्धार हुआ था। Because you have the indwelling of the Holy Spirit. क्योंकि उसके बाद ही पवित्र आत्मा आपके हृदय में निवास करने आया। Now you are double portion. अब आपको दुगना चाहिए। You're still sure double portion all of this. Sure. अभी आपने तय किया कि आपको दुगना चाहिए? What have been हाँ marking? कि नहीं? Sure, double portion. Yes or no? Yes. Come. Michelle is helping me a lot with this. आगे जाएंगे। Okay. 2 Kings 2:1. Let's go. वापस 2 राजा दूसरा अध्याय में जाएंगे। To receive this, you must know the secret. आज का जो आशीष को पाने के लिए पहले उसका रहस्य समझना है हमें। You know, mummies in old time, they hid little money in their kerchiefs and kids. थोड़े साल पहले जो है सारे जो माएँ हैं उनको आदत थी कि थोड़े से जो पैसे अपने जो साड़ी में या ड्रेस में जो है जो बांध कर छुपा कर रखते थे। Now we got locker system. आजकल तो लॉकर का सिस्टम आया है। My mother should hide some dabba you could not find only. या फिर कोई पैसे किसी जो डब्बे के अंदर या ऐसी जगह जहाँ दूसरों को नहीं मिले। And when we wanted and if the dabba makes noise, she'll get up. We are caught. तो पासा की जो माँ भी ऐसे ही करती थी और अगर वो डब्बे का आवाज आया तो पूछती थी क्या कर रहे हो उधर? Everything is a secret in the kingdom, but it is revealed to those who are hungry. परमेश्वर के राज्य की बातें भी रहस्यमय है, लेकिन जो परमेश्वर के लिए भूखे हैं उनको उसका प्रकटीकरण दिया जाता है। So the first portion you have already received as salvation. Hallelujah, through Christ Jesus. तो आपके उद्धार के दिन आपने आपका आशीष का पहला भाग जो पाया था यीशु के द्वारा। Thank God for the Pentecost. तो पेंटिकॉस्ट के दिन के लिए प्रभु को स्तुति। That 3,000 were added. उस दिन 3,000 जो है जुड़ गए And परमेश्वर। still they are being added. आज तक लोग परमेश्वर के राज्य में जुड़ रहे हैं। That's why we Gentiles are now grafted into the olive tree of God. इसलिए आज हम जो गैर यहूदी है फिर भी हमको परमेश्वर के जैतून के पेड़ में जोड़ा गया। Now, when the Lord was about to take Elijah to heaven, Elijah went with Elisha from Gilgal. लिखा गया है जब एलाइजा को स्वर्ग में ले जाने का समय आया तो एलाइजा ने एलीशा के साथ गिलगल गए। You have to remember 4 words. 4 शब्द आज आपको ध्यान में रखना है। Take it not here, take it here. यहाँ पर ही नहीं, यहाँ पर जाना चाहिए। Gilgal, say Gilgal. सबसे पहले गिलगल। Today I'm not preaching, I'm teaching. गिलगल की जगह है। Gilgal is a place of beginnings. गिलगल ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत सारी चीजों की शुरुआत हुई थी। It was the place where the Israelites first celebrated Passover in the promised land. जो वाचा के देश में जो है जहाँ पर परमेश्वर ने जो फसल का पर्व जो परमेश्वर का फसल का पर्व वहाँ पर जो पहली बार जो मनाया गया। The males born during the wilderness were circumcised and a covenant was renewed at Gilgal. और जो लड़कों का खतना जो किया गया था सबसे पहले वो जो गिलगाल में हुआ था। So we need to know what is
सारी चीज़ों की शुरुआत वहाँ पर होती है। Priyanka. Now I will show exactly what is happening. अब हम जो है थोड़ा उदाहरण से हम समझेंगे। If we want double portion, we must understand. अगर हमें दुगना भाग चाहिए तो इस बात को समझना है। इधर आओ please. Say 3 years back, she received salvation. सोचो अगर 3 साल पहले प्रिया को जो है उद्धार जो मिला, She received the first portion. उद्धार के दिन उसे जो पहला आशीष का भाग मिला था। Just for example as salvation. उदाहरण हम ले रहे हैं। Now it's 2021. So she has moved on in her life. अब 3 साल हुए हैं तो वो अपने विश्वासी जीवन में आगे जो बढ़ी है। This is just an example. God is using her for understanding. परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर रहा है और सिर्फ उसका जो है उदाहरण के लिए उसे याद दिया है। But she's saying, Lord, double portion. लेकिन इन 3 साल जो बीतने के बाद वो प्रार्थना कर रही है, प्रभु मुझे दुगना आशीष चाहिए। Anoint me, Lord. मुझ पर आपका अभिषेक आए प्रभु। Do something in my life, मेरे Lord. जीवन में कुछ करो I परमेश्वर। want to see power. आपका सामर्थ मेरे जीवन में दिखना Power चाहिए। to be released to my life. मेरे जीवन के द्वारा आपका सामर्थ निकले प्रभु। Then when I pray over the sick, they are healed. और जब मैं जो बीमार है उनके ऊपर प्रार्थना करूंगी तो वो चंगे हो जाए, ऐसा हो प्रभु। By the way, Hatmur was fabulous. अद्भुत का आउटरीच बहुत अच्छा गया। It broke all records. प्रभु ने अद्भुत कार्य किए। Thank you for all those who have prayed. जिन्होंने भी प्रार्थना किया उनको धन्यवाद। At the corner of the lane, that man who had the broken legs, he stood right in front of me. जिस व्यक्ति का हमने जो आपको बताया था उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो जो है हमारे सामने आकर खड़ा हुआ खुद को दिखाने के लिए कि देखो मुझे। And I told पैंट ऊपर करो. You know what? No marks, no scars, nothing. उसके Everything is जो clear. पैर जो है नॉर्मल जैसे दिख रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल जैसे। I told him, do this, he did this. And then I went to another place. We went there. There was a lady put out in drips. उसका जो है टेस्टिमनी के बाद हम दूसरी जगह पर गए जहाँ एक स्त्री को जो है बाहर खटिया पे जो रखा गया था और बाहर ही जो ड्रिप्स दिया जा रहा था उसे। Dangerous cases. बहुत ही जो है उसका बुरा हाल था। But when Jesus was there, all things are possible. लेकिन जहाँ पर हम यीशु को ले आते हैं तो सब कुछ संभव होता है। You just got to go with the Lord. हमें बस प्रभु के पास जाना है हर चीज के लिए। See, dangerous cases, there are drips. सोचो ऐसी जो है स्त्री जो है लेटी हुई है और जो ड्रिप्स जो है जो उसको दिया जा रहा है बाहर। And they are asking for prayer because they know something good is happening. और वो प्रार्थना के लिए मांग रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ अच्छा प्रभु कर रहा है। And we are praying, Lord, you do it, Lord, so that your name will be glorified. और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप करो क्योंकि परमेश्वर आपका नाम ऊंचा उठा लिया जाएगा वहाँ पर। So Priya has come from there to here in her life. तो प्रिया जो है 3 साल पहले से अपना आत्मिक जो यात्रा शुरू किया, अब यहाँ पहुंची है। And she's saying nothing is happening. और वो कह रहे प्रभु कुछ नहीं हो रहा। My 18 months also got wasted because of this COVID. एक कोविड की वजह से इतने नुकसान हुआ। Something must happen. कुछ होना चाहिए She's प्रभु। saying, Lord, I want double portion. You gave Elisha, now you give me. और वो रोकर प्रभु से मांगती है रोज कि प्रभु मुझे दुगना आशीष चाहिए जैसे एलिशा को मिला था प्रभु। So Elisha, God is saying, तो परमेश्वर कहता है Priya, you want double portion? प्रिया तुम्हें दुगना आशीष चाहिए? I'm ready to give you. मैं तैयार हूँ देने के लिए। But we have to go to Gilgal. लेकिन पहले हम गिलगल जाएंगे। Restart. फिर से शुरू करेंगे। Restart. फिर से शुरू करना है। Place at beginning. वापस से। Remember your first love. आपको याद करना है कि सबसे पहले जब आपने परमेश्वर का प्रेम का अनुभव किया था। See, there is nothing greater than the love of Christ. यीशु मसीह के प्रेम से ज्यादा बड़ा और कुछ नहीं। Because God wants to fill and fill and fill you with so much love that when it comes out with power. और परमेश्वर चाहते हैं कि हमको इतना उसके प्रेम से भरना, इतना भरना ताकि हमारे अंदर से भी उमड़ता हुआ बाहर आ जाए। Now Gilgal was a place covenant with God. अब गिलगल ऐसी जगह थी जहाँ पर जो वाचा का जगह है परमेश्वर के साथ
जो बनाया हुआ, It's a renewal covenant with God. तो जब वो फिर से उस जगह पर जाती है तो फिर से वो अपना जो वाचा परमेश्वर के साथ जो बांध लेती है। Everybody wants double portion, but they have to visit Gilgal, the place of beginning again. तो जिनको भी दुगना चाहिए, सबसे पहले आपको जो वापस गिलगाल की जगह पर जाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा सबसे पहले जो आपने अनुभव किया था प्रभु का इतना प्रेम, Rededicate our lives to God. फिर से अपना जीवन परमेश्वर की हमारी पूरी रीति से करना है। Lord, forgive me if these years I've done something wrong, Lord, but now I'm ready, Lord. Help me. I want to do it, Lord. प्रभु मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैंने गड़बड़ी की है, मैं भटक गई प्रभु, मैं फिर से आना चाहती हूँ पिता परमेश्वर, मुझे छू लो फिर से प्रभु। I may have missed on my prayer, I may have missed on worship, I have missed on the things that you have given me, Lord. But Lord, help me, Lord. I want to restart again. प्रभु मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैंने जो बाइबल नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं किया, जो मुझे करना था मैंने नहीं किया प्रभु, मैं क्षमा मांगती हूँ। फिर एक बार मैं आपके पास आती हूँ प्रभु, मेरा वाचा फिर से आपके साथ बांधने के लिए प्रभु। Imagine if we all had double portion, you know what would have happened? सोचो अगर सभी के पास दुगना आशीष होता तो क्या होता मुंबई में। But nothing is impossible for God. लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। So she has to go back to Gilgal. तो अगर उसको चाहिए तो उसे सबसे पहले इस प्रक्रिया में फिर से गिलगाल जाना पड़ेगा। And Elijah said to Elisha, stay here. तो एलीशा ने एलीशा से कहा तुम यहीं पर रहो, For the Lord has sent me on to Bethel. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बेथेल जाने के लिए जो बोला है। But Elisha said, लेकिन एलीशा ने एलीशा को जवाब दिया, as the Lord lives, जैसे प्रभु जीता है and your soul lives. और तुम्हारा जो प्राण अभी भी जीवित है। Because in olden times, the servant, that is Elisha was the servant and Elijah was the master. वहाँ पर हम देखते हैं जो है पुराने नियम में एलीजा का जो सेवक एलीशा था। So they went down to Bethel. तो एलीशा ने एलीजा का साथ नहीं छोड़ा और एलीजा के साथ एलीशा जो बेथेल गया। So from Gilgal to Bethel. Stand here. तो गिलगाल से वो यात्रा करके जो बेथेल जो पहुंचते हैं। Now what is Bethel? अब जो बेथेल जगह का मतलब क्या है? Bethel is a place of dream. बेथेल जगह का मतलब है ऐसा जगह जहाँ पर जो सपने आता है। You had a dream that God would use you. आपको जो सपना आया था, दर्शन आया था कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। I'm ready to go. You are at a place where you will tell 10, 12 people at a stroke about Jesus. आप तैयार थे और सब कुछ आपको बताने के लिए यीशु के बारे में आप इतने उत्सुक थे, ऐसी जगह पर आप आए। You are like a balloon full of air. एक जो गुब्बारा जो हवा से भरा हुआ है। But after so much time there, all the air became. हो सकता है इतना समय के बाद वो गुब्बारा अभी बहुत छोटा हो गया। So she is at a place of dream, the refilling station. तो जब हम बेथेल पहुंचते हैं तो फिर से वो अपने आप को परमेश्वर से भर देगी। It was a place where Jacob met God. बेथेल की जगह वो है जहाँ पर याकूब ने परमेश्वर से मेल किया। Who met God? Jacob met God. याकूब जो परमेश्वर से मिले थे And there was a struggle with the angel. और याकूब ने जो है स्वर्गदूत के साथ संघर्ष किया था उस जगह। So Jacob never let the angel say, unless you bless me. और याकूब ने उस स्वर्गदूत को कहा कि जब तक तुम मुझे आशीष नहीं करते हो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। So now Priya is learning, unless you bless me, Lord, I am not getting up from my daily prayer. You must speak. उसी प्रकार से प्रिया भी डटी रहेगी और प्रभु को बोलेगी कि जब तक आप मुझे आशीषित नहीं करते